Hello and welcome to Lecture Academy. This is Prerna Sinha. In today's class, we are just going to practice another set of questions for NVS PGT teacher for the subject English. अगर आप लोगों ने हमारे पहले क्लासेस नहीं देखे हैं then just go and watch it on YouTube. और हाँ, अगर आप लोगों ने लक्ष्य अकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है then the link is given in the description box. Go to Play Store and install लक्ष्य अकेडमी ऐप. And one thing, लक्ष्य अकेडमी ऐप ने फॉर एनवीएस पीजीटी इंग्लिश का एक नया कोर्स लॉन्च किया है एंड इफ यू जस्ट वांट टू एनरोल टू दिस न्यू कोर्स देन यूज माय कूपन कोड दैट इज प्रेरणा05 टू गेट 5% ऑफ. एंड इस कोर्स में आपको डेली 3 to 4 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव डाउट क्लास मिलेंगे, आप लोगों को लाइव एमसीक्यूज मिलेंगे एंड वन थिंग, PDFs and MCQ tests are always available in this course, right? So if you want to enroll, then just go and enroll and get extra 5% off by using my coupon code that is Prerna05. Question number 21. Hedda Gabler Testman, a female character in Hedda Gabler, a drama on social criticism, was penned by. अब ये जो है ना, ये हेडा गैबलर है, ये एक फीमेल कैरेक्टर है, राइट? हेडा गैबलर एक ड्रामा है, उसमें ये फीमेल कैरेक्टर है, उनका नाम है हेडा गैबलर टेस्टमैन, राइट? और ये ड्रामा किसने लिखा था? ये ड्रामा किनके द्वारा लिखा गया था? देन द आंसर विल बी हेनरिक इब्सन, राइट? ये ड्रामा हेनरिक इब्सन ने लिखा था एंड हेडा गैबलर जो है ना, ये अपनी शादी से बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है, अपनी शादी से खुश नहीं रहती हैं, राइट? इस ड्रामा में बेसिकली इन्हीं की स्टोरी को बताया गया है बिकॉज शी वॉज नॉट हैप्पी विथ हर मैरिज, राइट? सो शी वॉज अ फीमेल कैरेक्टर इन हेडा गैबलर. ये एक ड्रामा का नाम है हेडा गैबलर एंड फीमेल जो कैरेक्टर है उसमें हेडा गैबलर टेस्टमैन उनका नाम है, राइट? So the answer will be Henrik Ibsen. Now coming to question number 22. Actually question number 22 में मैंने पहले ही आंसर लिख दिया है, right? I like to play a football होगा यहाँ पर and मैंने यहाँ आंसर पहले ही already लिख दिया है. The option will be a football, right? So basically I like to play the football तो नहीं होगा. I like to play footballs ये भी नहीं होगा. I like to play football. No, I like to play a football होगा, right? The answer will be I like to play a football, right? Question number 23 में आ जाते हैं. That is, dash is an important aspect in children, right? Dash is an important aspect in children. तो क्या होगा? The creativity is an important aspect in children? No, it's not a right way to answer, right? A creativity? No, a creativity is an important aspect. ये भी नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा. Creativity is an important aspect in children या फिर creativities तो बिल्कुल नहीं होगा. Then the answer will be creativity. What will be the answer? Creativity, right? So these are common questions which they ask in NVS PGT English exam, right? Coming to the question number 24. The flood affected people dash residences and farmlands by authorities before evacuation, right? तो क्या होगा ना कि have been promised, the flood affected people have been promised या the flood affected people were promised या फिर the flood affected people are promised या फिर the flood affected people will be promised. Okay, तो आंसर क्या होगा? The flood affected people were promised residences and farmlands by the authorities before evacuation, right? The answer will be were promised, right? Now coming to the question number 25, that is, Endymion, a poetic romance by John Keats, was published in the year. तो basically Endymion कब publish हुआ था? Any guesses? If you just want to write the answer, you can just write it on the comment box, right? Endymion कब publish हुआ था? And Endymion was published in 1818, right? 1818 को Endymion publish हुआ था. The publishing year of Endymion is 1818, right?
आई डोंट थिंक कि आप लोग डेट्स तो आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे, बिकॉज हमेशा ये पूछे जाते हैं, इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछे जाते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चंस में डेट्स का हमेशा मेंशन रहता है, एंड लिटरेचर में डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द डेट्स, राइट. आप लोगों को इम्पोर्टेंट राइटर्स के इम्पोर्टेंट वर्क्स के डेट्स हमेशा ही याद करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप लोगों को ये चीजें याद नहीं रहेंगी ना, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. नाउ जस्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज who among the following poets served as an apprentice to a surgeon at Edmonton, North London before he began his poetic career, right? तो आंसर होगा जॉन कीट्स. ये जो जॉन कीट्स है ये आंसर होगा. मैं जॉन कीट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताती हूँ, राइट. तो जॉन कीट्स के जो पेरेंट्स थे ना, वो जब जॉन कीट्स बहुत ही कम एज के थे तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है. जॉन कीट्स टू डाइड एट द एज ऑफ 25. ओके, जब वो 25 ईयर्स के थे, तो क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है. डेथ किससे होती है, तो ट्यूबरक्लोसिस से होती है, टीबी से उनकी डेथ हो जाती है, राइट. सो वो क्या होता है ना कि जॉन कीट्स जो थे उन्होंने ना उनके पास लाइसेंस था प्रैक्टिस करने का, फॉर सर्जन, फॉर फिजिशियन, फॉर एपिथोकेरी, राइट. उनके पास लाइसेंस था, बट इस काम में उनका मन नहीं लगा, एंड इन सारे कामों को छोड़ करके वो अपने गार्जियन जो रहते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू पोएटिक करियर. सो इसके बाद से ही उन्होंने पोएट्री लिखना स्टार्ट की, एंड एट द वेरी यंग एज ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, राइट. उनका जो लाइफ था, उनके फादर की पहले डेथ हो जाती है, कुछ टाइम के बाद उनकी मदर की भी ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाती है, उनके ब्रदर की भी ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो जाती है, एंड मतलब उनका जो लाइफ था ना ये बहुत ही सैड एंड ग्लूमी था, राइट. सो 25 ईयर बहुत ज़्यादा एज तो होती नहीं है, राइट. तो जस्ट इतने कम उम्र में उन्होंने इतने एक्सलेंट वर्क दिए हैं हमें, राइट. सो वी शुड जस्ट appreciate the work of John Keats, right. Now coming to the question number 27, that is choose the correct passive voice for the sentence given below. The mason is building a wall. I think question number 2, question number 2 and question number I think option number 2 and option number 4, they both are just same, right. तो ऑप्शन में क्या है, द वॉल वॉज बीइंग बिल्ड बाय द मैसन. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस. एंड द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय द मैसन, ये भी नहीं होगा. द आंसर विल बी क्या होगा, द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन, ये वाला आंसर होगा. या तो दोनों सेम ही है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द वॉल इज being built by the mason, right. Now coming to another question, that is question number 28. Now coming to another question, that is Prometheus Unbound was a poetic drama by which of the following poets, right. तो ये Prometheus Unbound किसने लिखा था, Prometheus Unbound ये लिखा गया था पीबी शेली के द्वारा, राइट. आंसर क्या होगा, पीबी शेली. Prometheus Unbound was written by पीबी शेली, राइट. तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, दैट इज अ मैग्निफिशिएंट. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, दैट इज अ मैग्निफिशिएंट pleasure palace to be built by Kubla Khan was situated on the banks of the Dash river, right. हम लोग आज जब अपने डिटेल्ड कोर्स करेंगे इन आवर लक्ष्य अकेडमी ऐप, ओके, व्हेन यू विल गेट इनरोल्ड टू द न्यू कोर्स, देन वी आर जस्ट गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी वर्क एंड पोएम्स एंड ड्रामास, राइट, गिवन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, राइट. सो कुबला खान में क्या बताया गया है कि ए मैग्निफिशिएंट प्लेजर पैलेस टू बी बिल्ट बाय कुबला खान. तो वो कहाँ सिचुएटेड था, तो वो था या तो वो अल्फ में था, या तो वो सेवरन में था, या वो टेम्स में था, या फिर एवन में था. टेम्स के बारे में पता है ना कि ये कहाँ है, टेम्स रिवर कहाँ है, ये टेम्स रिवर लंदन में है, राइट. तो आंसर इसका क्या होगा ना, अल्फ. इसमें ना कुबला खान में ना अल्फ का जिक्र किया गया है, एंड द आंसर इज अल्फ, राइट.
The answer will be Ulf. A magnificent pleasure palace to be built by Kubla Khan was situated on the banks of the Ulf river, right? अल्फ रिवर में सिचुएटेड था, राइट? तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, दैट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफन फाउंड इन इंग्लिश पोएट्री which identifies God with the universe or regards the universe as a manifestation of God is called. तो ये क्या है? A doctrine often found in English poetry which identify God with the universe or regards the universe as a manifestation of God is called pantheism, right? Pantheism. And you know what? इसके फॉलोवर कौन थे? It was followed by, pantheism was followed by Wordsworth, right? पैंथेइज्म वॉज फॉलोड बाय वर्ड्सवर्थ. इसका मतलब क्या होता है ना पैंथेइज्म का, कि दे जस्ट बिलीव इन गॉड, मतलब सब कुछ गॉड ही है, जितना भी कुछ है इस यूनिवर्स में गॉड का है. एंड खास करके विलियम वर्ड्सवर्थ ये इस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, एंड ही वाज जस्ट नोन एज पैंथेइज्म, राइट? एंड एज ओके, सो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ना, ये ज्यादा फॉलो करते थे पैंथेइज्म को. उनका मानना था, वो ना गॉड में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, राइट? तो पैंथेइज्म क्या है? विच आइडेंटिफाइज, पैंथेइज्म क्या है, राइट? English poetry which identifies God with the universe or regard the universe as manifestation of God, right? सब कुछ God ही है, right? सब कुछ God ही है, God का ही सब कुछ दिया हुआ है, हमारे पास जो भी है वो God का दिया हुआ है. Then इस डॉक्ट्रिन को क्या बोलते हैं? पैंथेइज्म बोलते हैं, राइट? अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है पैगनिज्म, राइट? अब पैगनिज्म क्या होता है? पेगनिज्म क्या होता है? तो पेगनिज्म क्या है? अ मॉडर्न रिलीजियस मूवमेंट incorporating beliefs or practices from outside the main world religion, especially natural world. Okay, क्या है कि practices from outside the main world religion, especially nature worship, right? इसमें क्या है ना कि जो मॉडर्न पैगनिज्म है उसमें ना मदर अर्थ का, नेचर का ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, राइट? पैगनिज्म में क्या होता है कि मेन वर्ल्ड से निकल करके ये सारी चीजें को प्रैक्टिस किया जाता है. एंड स्पेशली क्या वर्शिप होता है इसमें? तो नेचर वर्शिप होता है, मदर अर्थ वर्शिप होती है, राइट? अब हम आते हैं इसका तो आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, राइट? इसका आंसर होगा पैंथेइज्म. ओके, अब हम आते हैं पॉलीथेइज्म, राइट? पॉलीथेइज्म क्या होता है? तो पॉलीथेइज्म होता है द बिलीफ इन और वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड. अगर हम मोर देन वन गॉड को बिलीव करते हैं एंड वर्शिप करते हैं देन इट इज कॉल्ड पॉलीथेइज्म. तो रोमांटिसिज्म जो है ना यहाँ से टोटली आउट हो जाता है, बिकॉज ये तीनों तो चलो सिमिलर हैं, बट रोमांटिसिज्म इज टोटली डिफरेंट बिकॉज इट इज अ मूवमेंट in the arts and literature that originated in late 18th century. ठीक है, इसका इनका मेन पर्पस क्या था? इंस्पिरेशन था, सब्जेक्टिविटी था, एंड प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल. एंड रोमांटिसिज्म में एक चीज और क्या होता है ना, मैं बताती हूँ आप लोगों को. जो रोमांटिसिज्म जो पोएट्स हैं जैसे कि वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, शेली है, बायरन है, राइट? दे आर जस्ट ये लोग रोमांटिसिज्म एज से बिलोंग करते हैं. एंड उनका क्या मानना था कि वो लोग ना साइंटिफिक चीजों में बिलीव नहीं करते थे, दे जस्ट बिलीव इन इमेजिनेशन, इंस्पिरेशन, राइट? वो लोग इंडिविजुअल थॉट पे बिलीव करते थे, राइट? क्योंकि पोएट्री जो होती है वो इनर फीलिंग है, इनर फीलिंग्स के द्वारा निकलती है, राइट? सो उनका मानना था कि जो इंस्पिरेशन, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इंस्पिरेशन, सब्जेक्टिविटी एंड द प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल, राइट? इंडिविजुअल पे ये लोग ज्यादा फोकस करते थे. Instead of believing in the scientific things, they just believe in individual, and their main motto is inspiration, subjectivity, right? So I think कि romanticism जो है ये यहाँ से टोटली ये ऑप्शन पहले ही कट हो जाता है. तो रोमांटिसिज्म तो बिल्कुल भी, इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा तो रोमांटिसिज्म तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा. द आंसर इज पैंथेइज्म, राइट? एंड वर्ड्सवर्थ
जो थे वो पैंथेइज्म को फॉलो करते थे, जैसे आप लोग याद रखिएगा, ऐसे फैक्ट मैं बता रही हूँ आप लोगों को, राइट? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. And if you haven't enrolled to our new courses for PGT English, right? So go to Lakshya Academy app and install and get enrolled to the new courses as soon as possible. And use my referral code Prerna05 to get 5% more discount. That's all for today. Thank you so much for watching Lakshya Academy. Meet you in the next class.